Hello students, this is Ritvik Dubey, your computer teacher. In today's video class, we will discuss about ethics and safety measures in computing. Okay, chapter 4. This is part 1 of chapter 4. Okay, let's start. Let us discuss about internet. What is internet? The internet is the biggest network of computers in the world that connects millions of computers and computer networks together for the purpose of sharing information and facilitating communication. Okay, now try to understand the meaning. Okay, divide this complete sentence into smaller components. The internet. The internet is what? Biggest network of computers. Now, what is the meaning of network? Network means when group of computers or more than one computer is connected with each other in order to share information and resources, that is called as a network. That is called as a network. Okay? अगर एक से ज्यादा कंप्यूटर्स, 3 कंप्यूटर, 5 कंप्यूटर, 500 कंप्यूटर, 1000 कंप्यूटर, मिलियंस कंप्यूटर, मतलब एक से ज्यादा अगर आपस में कनेक्टेड हैं और आपस में इंफॉर्मेशंस को शेयर कर रहे हैं, रिसोर्सेस को भी शेयर कर पा रहे हैं, ठीक है, रिसोर्सेस मतलब प्रिंटर, स्कैनर वगैरह ये सब, तो फिर उसको हम लोग नेटवर्क कहेंगे. तो इंटरनेट क्या है? इंटरनेट इज द बिगेस्ट, okay, biggest network of computers in the world. Clear? This line is clear. The internet is what? The internet is the biggest network of computers in the world. Now, that connects millions of computers. Yes or no? What is the work of, or what is the functionality of a network? The functionality of a network is to connect millions of computers. Yes or no? So that connects millions of computers and computer networks. Millions of computers and computer networks together for the purpose of sharing information and facilitating communication. So millions of computers ko or millions of computer networks ho. Now what is the meaning of this line? Okay, let me discuss. Just a second. See, what is the meaning of that connects millions of computers and computer networks? What is the meaning of this? Suppose this is one computer. Okay, this is one computer. Okay, this is one computer. This is one computer. Now this is here we have suppose local area network. One computer. These computers are connected with each other. Okay, it is connected with each other. Let me give you an example. Okay, so all these computers are connected with each other. All these computers are connected with each other. Okay, all these computers are connected with each other. So what is this? This is a network. Yes or no? This is what? This is a network. Yes, this is a network. Now again, suppose if there is another network where multiple computers are connected, okay, where multiple computers are connected. Okay, third computer, suppose 4, 5 computers. Okay, n number of computers. Suppose this is second network, another network. Okay, this is another network. This is another network. Another network, and these are individual computers. These are individual computers. Okay, these are individual computers. Now what is internet? Internet is the biggest network of computers in the world that connects millions of computers and computer networks. So this computer will be connected to 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 this network, this computer will be connected to this network. That is why here it is written that connects millions of computers and computer networks. मतलब इंडिविजुअल कंप्यूटर्स भी कनेक्ट हो रहे हैं आपस में और वो कनेक्ट हो रहे हैं दूसरे नेटवर्क के साथ
और नेटवर्क्स भी आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, नेटवर्क्स भी आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, मतलब ये सारा का सारा चीज, सेकंड कंप्यूटर भी सबके साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। इसीलिए इसका नाम कहा जाता है इंटरनेट। दिस कंप्लीट थिंग, ओके, दिस कंप्लीट थिंग इज कॉल्ड एज इंटरनेट। दिस कंप्लीट थिंग इज कॉल्ड एज इंटरनेट। दिस कंप्लीट थिंग इज कॉल्ड एज इंटरनेट। Okay, so now read the definition. The internet is the biggest network of computers in the world that connects millions of computers and computer networks together. अब क्यों, रीजन क्या है? फॉर द पर्पज ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन, ताकि इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा सके और कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट किया जा सके। कम्युनिकेशन मतलब एक जन अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जो इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है via any mean, that is called as communicating. ओके, तो यही तरीका है बच्चों कोई भी डेफिनेशन को याद करने का। दिस इज द वे टू लर्न एनी डेफिनेशन, नॉट ओनली इन कंप्यूटर, इन एनी सब्जेक्ट। Okay, just break down the complete sentence into smaller components. So this is the first component. Okay, just wait, let me rub this. Yes, see, the internet is the biggest network of computers in the world. First of all, learn this line. Then this is the second part, that connects millions of computers and computer networks together. This is the second part. Okay, why is it connected? For the purpose of sharing information and facilitating communication. So you have divided this complete definition into 3 parts. Okay, now it will become easy for you to learn. Now close your eyes, all of you. Now what was the very first part? Internet है क्या? Biggest network है। किसका biggest network है? Biggest network of computers in the world. वो क्या करता है? कनेक्ट करता है millions of computers and computer networks को। क्यों करता है कनेक्ट? For the purpose of sharing information and facilitating communication. Okay, so if you will learn like this, students, easily you can what? Complete all the subjects. Okay, easily, and you will get good marks in examination. Now, see, the internet is also called as global network of computers. The internet is also called as global network of computers. क्यों global? Globe का मतलब होता है पूरे पृथ्वी में। तो पूरे पृथ्वी में जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कनेक्ट हो सकते हैं by using internet. You can see. Okay. Now, let us discuss about the advantages of internet. Let us discuss about the advantages of internet. First advantage, we can search for any information from the internet. We can search for any information from the internet. है ना? अगर आपको कोई सब्जेक्ट्स का डाउट्स है, ठीक है, अगर आपको कुछ जनरल नॉलेज से रिलेटेड चीजें जाननी है, आप कोई भी चीज को इंटरनेट से सर्च कर सकते हो। दिस इज द एडवांटेज नंबर 1. एडवांटेज नंबर 2, इट इज द बेस्ट मीडियम to communicate with people living at far off places. It is the best medium to communicate with people living at far off places. मतलब मान लो आप इंडिया में हो और आपके कोई कजिन या आपके कोई रिलेटिव अगर आउट ऑफ इंडिया है, तो भी आप लोग इजिली कम्युनिकेट कर सकते हो। क्यों? बिकॉज ऑफ इंटरनेट, है ना? तो इंटरनेट प्रोवाइड सर्विसेज लाइक ईमेल्स, चैट प्रोग्राम्स, इंस्टेंट मैसेजिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, है ना? बहुत ज्यादा अगर याद आ रही है, आप बाहर कहीं पे हो, मम्मी पापा की याद आ रही है, भाई बहन की याद आ रही है, कुछ नहीं, वीडियो कॉल कर लो, है ना? लेकिन पहले ये सुविधा नहीं थी, ठीक है? थर्ड, इट कैन बी यूज्ड फॉर ऑनलाइन रिजर्वेशन. इट कैन बी यूज्ड फॉर ऑनलाइन रिजर्वेशन टू बुक एयर, रेलवे एंड बस टिकट्स सिटिंग एट होम, है ना? घर बैठे बैठे ही आप लोग क्या रेलवे का टिकट बुक कर सकते हो, एयर का टिकट बुक कर सकते हो, बस का टिकट बुक कर सकते हो, ठीक है? इट कैन बी यूज्ड फॉर ऑनलाइन बैंकिंग विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ई बैंकिंग. ई बैंकिंग इज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग. घर बैठे बैठे ही आप अपने बैंक में कितना रुपया है अभी, है ना, या फिर किसी को अगर पैसा भेजना है, आपको ट्रांसफर करना है, ये सारी चीजों को
करने के लिए बैंक भी जाने की जरूरत नहीं है. Okay, you can done all these activities online. So it can be used for online banking or e-banking. That is, any inquiry or transaction can be done online without visiting the bank. Sir, ये transaction का मतलब क्या होता है? पैसे का लेन देन. Okay, transaction means पैसे का लेन देन. Okay. Then advantage number 5. It can be used for online education. It can be used for online education, or we can say e-learning. Example, during this COVID-19 pandemic situation, पैंडेमिक मतलब महामारी का समय है ना, बहुत तेजी से पूरा फैल रहा है, वो हर किसी को हो जा रहा है, इसको बोलते हैं पैंडेमिक. तो ड्यूरिंग दिस कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन, टीचर्स आर टीचिंग द स्टूडेंट्स ऑनलाइन यूजिंग व्हाट्सएप, यूट्यूब, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एटसेट्रा. है कि नहीं? अभी हम लोग स्कूल नहीं जा सकते हैं, तो हम लोग देखो इंटरनेट का कितना अच्छे से यूज कर रहे हैं. आप लोग पढ़ ले रहे हो, हम लोग पढ़ा ले रहे हैं, है ना. तो ये एडवांटेज हुआ ना इंटरनेट का. देन point number 6, it can be used for buying or selling products online, which is called as e-commerce. It is available 24/7. हम लोग कोई भी चीज को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं ऑनलाइन, जिसको कि ई कॉमर्स कहा जाता है. कॉमर्स का मतलब होता है बिजनेस से रिलेटेड, है ना. चीजों को खरीदना और बेचना इज कॉल्ड एज ई कॉमर्स. इट इज अवेलेबल 24/7, मतलब 24 घंटे 7 दिन, यानी कि हमेशा. 24/7 का मतलब होता है हमेशा, ये हमेशा अवेलेबल है. ठीक है. देन वी कैन सेंड टेक्स्ट, ऑडियो, पिक्चर मैसेजेस थ्रू ईमेल, है ना. ईमेल के बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ईमेल कैसे क्रिएट करना है, ईमेल अकाउंट, और किस तरीके से हम लोग किसी को भी मैसेज वगैरह कर सकते हैं. ऑल दीज थिंग्स आई विल डिस्कस बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लर्न अबाउट ईमेल these days. Okay, it is the fundamental thing. So let us discuss about email. An email is an electronic message sent from one computer to another that contain text, pictures and sound. तो बच्चों मैं एक चीज बता दूं, जितने भी प्रोफेशनल जगह है ना, जितने भी कॉर्पोरेट एरियाज हैं, वहां पर ऑफिशियल मैसेजेस ईमेल के माध्यम से ही दिया जाता है. ऑल द ऑफिशियल मैसेजेस आर गिवन वाया ईमेल ओनली. ठीक है. और ईमेल के अंदर आप टेक्स्ट डाल सकते हो. टेक्स्ट मतलब कुछ रिटन चीज, पिक्चर्स भी दे सकते हो, साउंड भी दे सकते हो. आजकल तो गूगल ड्राइव में वीडियो को डाल करके वीडियो का लिंक भी शेयर कर सकते हो, है ना. तो ईमेल इज द फास्टेस्ट एंड चीपेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. सबसे तेज और सबसे सस्ता. चीपेस्ट मतलब सबसे सस्ता. फॉलोइंग आर अ फ्यू वेबसाइट्स दैट ऑफर ईमेल सर्विस, है ना. आप फ्री अकाउंट यहां पे क्रिएट कर सकते हो. किसमें? www.gmail.com, यानी कि गूगल कंपनी प्रोवाइड करती है. देन www.yahoomail.com, www.rediffmail.com. ओके, क्लियर ना? Okay, let me show it to you. Now I will show you how we can create our Gmail account. How we can create our Gmail account. Step number 1, connect your computer with internet. See, I have already connected, you can see. Okay. Now, in my case, I will use Google Chrome web browser. You can use Mozilla Firefox or Internet Explorer. You can use any browser. Okay. In my case, I'm using Google Chrome browser. See, on the taskbar, I'm using Google Chrome web browser. Click over it. Okay. Now you will get a page like this. If you are not getting a page like this, then in such case you will have to type www.google, Google, google.co.in. Okay, what you have to type? www.google.co.in. okay, and press enter, Doing this, you will come to this page only. Okay, in my case, the default home page is this one. The default page which appears when I open Google Chrome is this one only, the search engine page. Okay, if it is not appearing on your computer, then in such case, you will have to type www.google.co.in. Co.in means India. Okay, now can you see here on the top right side, you will find
an option called Gmail option. Okay, if you're not getting Gmail option, just directly type Gmail here. Okay, in my case, I'm getting Gmail option, so I will click over it, Gmail option. Okay, so since I haven't logged out, let me sign out of all accounts. Okay, let me sign out of all accounts. Let me remove all the accounts. Okay, let me remove all the accounts. Yes, so you will get the page like this. If you are using it for the first time, you will get a page like this. Okay, where you will be asked to enter your email and then click on next button. But here I have to teach how to create Gmail account. Yes or no? How to create Gmail account. So can you see this option, create account option? Yes. Okay, let me start from the beginning. Let me start from the beginning. See, click on Google Chrome. Okay, on the top right side, you will find an option called Gmail. Click over it. Previously, some account was opened, so I logged out of all account and removed all account. Now, this is the page which I'm getting. Okay, can you see the option called create account? Yes, click on create account for myself. You will get two options to manage my business for myself. Click on for myself. Okay, now you will have to fill this form. Suppose first name is Ritwik Ritvik and last name is Dubey. Last name is Ritvik Dubey. Username, you can select any username. Suppose, for example, I will tell you standard 7. Okay, standard 7 SMS. Standard 7 dot SMS at the rate gmail.com. Okay, username will be standard7.sms@gmail.com. I will forget, let me write here. STD user ID, US here. Username is standard7.sms @gmail.com. Okay, so this is my username. Okay, now password. Let me give any password now, but here the condition is use 8 or more characters with a mix of letters, numbers and symbols. मतलब पासवर्ड देते समय हमें ख्याल रखना है कि लेटर्स भी होना चाहिए, नंबर्स भी होना चाहिए, कुछ सिंबल्स भी होना चाहिए. So as a password, what can I give? As a password, PASSWORD, password. एक काम करते हैं, यहाँ पे दे देते हैं क्या पासवर्ड में mountain, MOUNTAIN, mountain @1. Okay, so number is there and some letters are there. Yes or no? See, how many characters are there? MA1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This will work. Mountain @1. See, these are letters. Okay, this is the special symbol and this is one digit. This is one digit. Okay, let me give here mountain 1, 2, 3. Mountain @1, 2, 3. Okay, let me type here MOUNTAIN, mountain @1, 2, 3. Mountain @1, 2, 3 था ना? नहीं, only one, sorry. Mountain @1. Mountain @1. ठीक है, अगर आप इसको क्लिक करोगे तो आपका पासवर्ड दिखेगा नहीं. मान लो आप अगर किसी फ्रेंड के साथ, किसी के साथ अगर आप पासवर्ड क्रिएट कर रहे हो तो इसको ऑफ कर देना ही ठीक है, नहीं तो वो क्या है आपका पासवर्ड देख लेगा. लेकिन मैं जानबूझ करके इसको ऑन कर रहा हूं ताकि आप लोगों को दिखे कि मैं पासवर्ड क्या दे रहा हूं. ओके, MOUNTAIN. अब उसी पासवर्ड को फिर से रिपीट करना है, कंफर्म पासवर्ड. ओके, तो mountain @1, mountain @1. ओके, अभी मैंने क्या दिया, फर्स्ट नेम दिया, लास्ट नेम दिया, यूजर नेम एक सिलेक्ट किया standard7.sms@gmail.com और फिर पासवर्ड मैंने दिया mountain @1, mountain @1. then I have to click on next button.
याद रखना, फोन नंबर जरूरी है, आपके पास वो मोबाइल होना चाहिए और उसमें वो फोन नंबर काम करना चाहिए, क्योंकि अभी एक मैसेज जाएगा मेरे मोबाइल में तभी काम हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। फोन नंबर, ओके, लेट मी गिव फोन नंबर 8249522381, 8249522381। रिकवरी ईमेल एड्रेस, ओके, लेट मी गिव my previous email address ritvik.sms@gmail.com, okay, @gmail.com, okay। Month, my date of birth is August, ठीक है, डे इज 14 एंड ईयर इज 1990, 1990। जेंडर मेल, ओके। सो आई हैव गिवन माय फोन नंबर, रिकवरी ईमेल एड्रेस। रिकवरी का मतलब समझो, अगर मैं इसका अगर यूजर आईडी पासवर्ड अगर भूल गया तो मैं कहां से रिकवर कर सकता हूं? ritvik.sms@gmail.com से रिकवर कर सकता हूं, ओके। सो देन गिव योर डेट ऑफ बर्थ एंड देन सिलेक्ट द जेंडर मेल एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट। तो आप लोग अभी बहुत छोटे हो सकता है कि ये अलाउ नहीं करे, तो आप एज को बढ़ा करके यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फिर अपने पेरेंट्स के नाम से रजिस्टर करके उसको यूज कर लेना, वो ज्यादा अच्छा है। तो अभी यहाँ पे देखो क्या लिखा, वेरीफाई और फोन नंबर। जो फोन नंबर आपने दिया था उसको वेरीफाई करने का समय आ गया है। टू मेक श्योर दिस नंबर इज योर्स, गूगल विल सेंड यू अ टेक्स्ट मैसेज विद अ 6 डिजिट वेरिफिकेशन कोड, ठीक है। तो मैंने जो नंबर दिया है वो ठीक है, तो 8249522381, यस। नाउ सेंड, अभी क्लिक करूंगा सेंड। अभी मुझे ये देखना है कि मेरे मोबाइल में मैसेज आ रहा है कि नहीं। आ गया, मेरे मोबाइल में मैसेज आ गया 671534। लेट मी टाइप 671534। अब ये मत समझना सर अपने मर्जी से यहाँ पे कोई भी नंबर दे रहे, नहीं, मेरे मोबाइल में अभी मैसेज आया, ठीक है, मेरे मोबाइल में मैसेज आया है अभी 671534, ओके। देन वेरीफाई, ओके। उसके बाद फिर यस आई एम इन, यस आई एम इन। उसके बाद फिर आई अग्री। सो इट विल टेक सम टाइम, क्योंकि वो अकाउंट क्रिएट कर रहा है उस यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ, है ना। सर्वर में आपका एक लोकेशन बन रहा है, अगर ऐसा सिंबल आ गया तो समझ लो आपका अकाउंट बन गया है, अगर ऐसे ओपन होकर के आ रहा है। सी, आया समझ में? मतलब हम लोगों ने सक्सेसफुली यहाँ पे क्या किया, सक्सेसफुली अपना जीमेल अकाउंट क्रिएट कर लिया है। ऑन द टॉप राइट साइड यू विल फाइंड आर, when I click R I will get the name which I have registered, Ritvik Dubey, and what is the username? You can see standard7.sms@gmail.com, ठीक है। हम यहाँ से ये R के जस्ट नीचे में देखो एक तो कैमरा का सिंबल है, यहाँ पे क्लिक करके मैं इसका फोटो भी चेंज कर सकता हूँ। सिलेक्ट अ फोटो फ्रॉम योर कंप्यूटर, ठीक है, एक फोटो दे देते हैं। वेयर इज दैट फोटो? F ड्राइव ना। लेट मी सिलेक्ट वन फोटो। Where is that photo? Yes, let me select this. Okay, just drag it here and then click on set as profile photo, set as profile photo, set as profile photo। तो अभी तो नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ दिन, कुछ देर के बाद, 6 घंटे के बाद, 7 घंटे के बाद, कभी कभी एक दिन भी लग जाता है, यहाँ पे आर के जगह में मेरा फोटो दिखाई देगा, ठीक है। आया समझ में? अब किसी को अगर मेल भेजना हो, किसी को अगर मेल भेजना हो तो कैसे भेजेंगे? देखो, ऑन द टॉप लेफ्ट साइड यू विल फाइंड अ बटन कॉल्ड कंपोज बटन, ओके। ऑन द टॉप लेफ्ट साइड यू विल फाइंड अ बटन कॉल्ड कंपोज बटन, ठीक है। यस, रेसिपेंट्स, यहां पर आपको उनका ईमेल आईडी देना है जिनको कि आपको मैसेज भेजना है। सपोज आई विल राइट हियर RITWI के ritvik.sms@gmail.com, okay। Subject demo, demo for students,
यू कैन गिव एनी सब्जेक्ट। मान लो आपको अगर अपने क्लास टीचर को कुछ मैसेज करना है तो आप लिख सकते हो लीव एप्लीकेशन, है ना। तो डेमो फॉर स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख सकते हो RESPEC, रेस्पेक्टेड सर, ठीक है, आई वुड लाइक टू टेल you that I have taken a demo class. I have taken a demo class of standard 7. Thank you. Thank you. With regards, RITWIK, ऋत्विक DUBEY, with regards ऋत्विक। ठीक है। अब यहाँ पे कोई फाइल भी आप अटैच कर सकते हो, इस मैसेज के साथ कोई फाइल भी आप अटैच कर सकते हो, कुछ फोटोज भी अटैच कर, देखो इंसर्ट फोटो है ना, कुछ ड्राइव से आपको कुछ फाइल्स, अगर ड्राइव के बारे में भी बताऊंगा, यहाँ से अटैच फाइल से, जैसे मान लो कि एक PDF फाइल अगर मेरे को भेजना है, PDF फाइल मान लो स्टैंडर्ड 7 से ले लेते हैं, सेंड मेरी स्कूल स्टैंडर्ड 7 PDF फाइल्स, मान लो ये नोट्स, ठीक है, ये नोट्स चैप्टर 1 पार्ट 1 का नोट्स है, तो ये सबको भी मैं अटैच कर सकता हूँ। ठीक है, ये सारे नोट्स को अटैच करके सिलेक्ट किए, सबको एक साथ करने के लिए क्या कंट्रोल प्रेस करके सबको एक साथ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखो 4 फाइल आ गया। ठीक है, 4 फाइल यहाँ पे अपलोड हो रहा है। आप लोग फोटोज भी अटैच कर सकते हो, ये अटैचमेंट बटन, ये जो देखो ये आप लोग उसके ऊपर अगर होवर करोगे ना माउस, तो अटैच फाइल्स का ऑप्शन दिखेगा, अटैच फाइल्स। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, अपलोड हो रहा है, अभी वेट करो जब तक ये ब्लू कलर का हो जाएगा, ये टेक्स्ट जो फाइल का नाम रहेगा ब्लू कलर का हो जाएगा, समझ लो इस मैसेज के साथ, कौन सा मैसेज के साथ, रेस्पेक्टेड सर आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई हैव टेकन अ डेमो क्लास, मतलब कुछ भी अपने टीचर को या फ्रेंड को लिख रहे हो, उसके साथ फाइल अटैच किए और फिर उसके बाद सेंड बटन पे क्लिक कर दिए, सेंड बटन पे क्लिक कर दिए। अभी आप यहाँ पे व्यू मैसेज करके देख सकते हो कि उनको कैसा दिखेगा, आपका मैसेज इस तरीके का दिखेगा। सब्जेक्ट आपने क्या लिखा था, डेमो फॉर स्टूडेंट्स, है ना। फिर इसको गया है, ये कौन भेजा है इसको, standard7.sms भेजा है, किसको भेजा गया है, ritwik.sms को भेजा गया है। रेस्पेक्टेड सर आई वुड लाइक टू टेल यू दैट आई हैव टेकन अ डेमो क्लास ऑफ 7, थैंक यू विथ रिगार्ड्स। तो देखो यहाँ पे 4 PDF फाइल सेंड कर। तो इस तरीके से आप लोग असाइनमेंट भी मुझे सबमिट कर सकते हो। ठीक है, ये सिखाने का मकसद क्या है, आप लोग इस तरीके से असाइनमेंट मेरे मेल में सबमिट कर सकते हो। क्लियर, इज दिस क्लियर, द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, ओके ना। सो दिस इज हाउ वी सेंड मैसेज। Okay, now one more thing, Google Drive. What is Google Drive? Google Drive is free online storage media, free online storage device you can say. Okay, वो कैसे पाएंगे हम लोग, लेकिन आप फ्री कितना तक, 15 GB तक। आप जितने ईमेल आईडी क्रिएट करोगे, हर जीमेल आईडी पे आपको 15 GB फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन स्टोरेज मिलेगा। सर ये ऑनलाइन स्टोरेज क्या होता है, हम लोग अपने फोटोज को, वीडियोज को, कुछ भी डेटाज हमारे पास हैं, उसको हम लोग ऑनलाइन स्टोर करके रख सकते हैं। सी ऑन द टॉप राइट साइड यू विल फाइंड, जस्ट लेफ्ट टू R, you will find these 9 dots. Click here. See, this is the drive option. This is the drive option. When I click here, okay, now I am within my drive. Within which drive? The drive of standard7.sms@gmail.com. ठीक है, अब इसके अंदर अगर मुझे फोल्डर अगर बनाना है तो देखो ऑन द टॉप लेफ्ट साइड यू विल फाइंड अ बटन कॉल्ड न्यू बटन, क्लिक ऑन न्यू बटन। अब आप लोग यहाँ पे देखो कितने सारे ऑप्शन देख सकते हो, फोल्डर अपलोड भी कर सकते हो, आपके सिस्टम में ऑलरेडी कुछ फोल्डर्स हैं तो आप सीधा अपलोड करो, या फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करना है तो फोल्डर पे क्लिक करो, और मान लो मैं यहाँ पे नाम देता हूँ माई नोट्स। ओके, माई नोट्स आप लोग अपने कंप्यूटर में नहीं करके गूगल ड्राइव में स्टोर करके रखो, ताकि अगर कभी आपका फोन खराब हो जाए या लैपटॉप खराब हो जाए तो भी आपका नोट्स प्रोटेक्टेड रहे, सेफ रहे। क्रिएट, ओके, क्रिएट, सी माई नोट्स। अब माई नोट्स फोल्डर पे डबल क्लिक करो, उसके अंदर चल जैसे माई ड्राइव, माई नोट्स फोल्डर के अंदर। अब मान लो कि यहाँ पे आपको वो सारे नोट्स को अपलोड करना है ना, सारे नोट्स को अपलोड करना है, लेकिन कौन से चैप्टर के, चैप्टर नंबर 3 का, तो और एक फोल्डर इसके अंदर बना दो, न्यू फोल्डर, राइट हियर CHAPTER, चैप्टर 3, है ना। चैप्टर 3 कौन सा था, VIRUSES, वायरसेस।
फिर यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो क्या हुआ, आपने माई ड्राइव, अपने ड्राइव के अंदर एक फोल्डर बनाया था माई नोट्स के अंदर, और एक आपने फोल्डर बनाया चैप्टर 3। ठीक है, इसके अंदर डबल क्लिक करो। अभी आप कहां पे, ऊपर देखो एड्रेस, आप माई ड्राइव के अंदर, माई नोट्स के अंदर चैप्टर 3 के अंदर हो। ओके, यू आर इन माई ड्राइव, माई नोट्स चैप्टर 3। Now, how to upload the notes? How to upload the notes from your computer? See, over the blank space, you can right click and you can use these options, or you can click over this new button and file upload. If this button is not working in your system, right click over it and upload files. See, you will get an option called upload files. ओके, अपलोड फाइल्स पे क्लिक किए, अब देखो आपको ले गया वो वहां पे। अब जैसे एफ ड्राइव में मैं था, एफ ड्राइव में मेरे को पता होना चाहिए वो नोट्स में कहाँ पे रखा हूँ। स्टैंडर्ड 7 का पीडीएफ फाइल्स, ये सारा मैं स्टोर करके रख सकता हूँ। कंट्रोल ए और नीचे में ओपन बटन पे क्लिक कर दूंगा, ये सारा देखो अपलोडिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे करके एक एक करके अपलोड होगा। पहला वाला देखो अपलोड होगा तो वो टिक का साइन आ जाएगा। ठीक है, ये देखो टिक का साइन आ गया, मतलब सब अपलोड हो गया। ठीक है, अब क्या है, ओके कंटिन्यू अपलोड, सब अपलोड हो गया। हाँ, सब अपलोड हो गया। ठीक है, अब इसका मैं व्यू चेंज कर सकता हूँ इस तरीके से, देखो। तो अब क्या होगा, बाई चांस मेरे लैपटॉप में कुछ खराबी आ गया है ना, वो फाइल्स अगर खो गए, डैमेज हो गए, डिलीट हो गए, तो भी मैं ऑनलाइन से फिर यहाँ पे जाकर के डाउनलोड कर सकता हूँ। ठीक है, देखो है ना, ये सारे नोट्स आ गए मेरे। ठीक है, ये नोट्स आ गए, ये देखो डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, फिर से मैं डाउनलोड कर दूंगा तो ये सारे फाइल्स फिर से आ जाएंगे। तो बच्चों ये बेनिफिट है, दिस इज द बेनिफिट ऑफ स्टोरिंग द थिंग्स ऑनलाइन। ओके, यू विल गेट टिल 15 GB फ्री। 15 GB के ऊपर अगर जाओगे तो फिर पैसा देना पड़ेगा। तो क्यों पैसा देना, और एक ईमेल आईडी क्रिएट कर, लेकिन 15 GB तक इतना इजीली हम लोग पहुंच नहीं सकते। तो वीडियोस डालने का जरूरत नहीं, फाइल्स वगैरह ही डालो। ओके, इज दिस क्लियर? Okay, the concept is clear now. The concept is clear. Okay, so this is all about Google Drive. This is all about Google Drive and how to create Gmail account. I have told you how to send the message. ठीक है, इस तरीके से आया समझ में? हाँ, और एक चीज बता देता हूं। अब मान लो इसको आप किसी के साथ अगर शेयर करना चाहते हो, इस पर राइट क्लिक करो और गेट शेयरेबल लिंक पे क्लिक करो। ओके, नाउ just change the setting. Anyone with the link can view it. Okay, anyone with the link can view it. Copy this link. Okay, copy this link. Now just a second. Yes, copy this link and just type WhatsApp web. WhatsApp web. It is taking some time. Okay, now see, you can send to any friend. Okay, anybody. Okay, just select the name and see, this is the conversation box. Right click over it. You have copied the link from there, na? You have copied the link from there. Just paste it here. Okay, and put some space. Yes, you can see. So you are sharing the link of that file. This is how we can share the link of that file. है ना, डायरेक्टली फाइल देने से अच्छा है कि लिंक दे दो, तो वो लिंक पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं जिसको भी दिए रहोगे। क्लियर? सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट जीमेल अकाउंट एंड गूगल ड्राइव। ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं सर व्हाट इज वन ड्राइव? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो प्रोवाइड करता है वो कहलाता है वन ड्राइव, एंड गूगल कंपनी जो प्रोवाइड करता है इट इज कॉल्ड एज व्हाट? Google Drive. Okay, anyway, let us come to the chapter. Now let us discuss about disadvantages. Okay, disadvantages of internet. Exploitation means what? पहले तो एडवांटेजेस देख लिए है ना, कितने सारे एडवांटेजेस थे, फायदे थे, अभी नुकसान भी देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सप्लॉयटेशन। मेनी पर्सन्स लाई अबाउट देयर आइडेंटिटी and misuse the technology because of the speed and ease of communicating on the internet. है ना, बहुत से persons आपको झूठ कहेंगे अपने बारे में, और
टेक्नोलॉजी को वो लोग मिसयूज करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी इंटरनेट पे कम्युनिकेट करना बहुत ही आसान हो गया और बहुत स्पीड हो गया है। Then second one is addiction and wastage of time. Addiction and wastage of time means what? Addiction and wastage of time. See, if you are playing the games online for more than half an hour, 1 hour, 2 hour, 3 hour, then it's a wastage of time ना। आप कुछ अच्छा कर सकते हो उस समय में, कुछ प्रोडक्टिव कर सकते हो, कुछ फायदेमंद कर सकते हो। ओके, सो एडिक्शन एंड वेस्टेज ऑफ टाइम इज अनदर डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, है ना। लत लग जाना जिसको बोलते हैं, एडिक्शन मींस लत लग जाना। थर्ड वन इज थेफ्ट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर हैकर्स। थेफ्ट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर हैकर्स, दिस इज अनदर डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेट, है ना। हमारे पर्सनल डेटा अगर चोरी हो जाएंगे तो फिर। Then fourth one is users get lot of spams and advertisement. Just now I told you how to create Gmail account. Okay, after few months or few years, you will find lots of advertisement and spams. Spams is unnecessary message. Okay, which may contain virus. जरूरी नहीं है लेकिन वायरस हो सकता है उसमें। तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट, इस तरह के मैसेज आपको अपने ईमेल पे मिल जाएंगे। क्यों? है डिसएडवांटेज है ये। हेल्थ इश्यूज एंड ओबेसिटी। ओबेसिटी मतलब मोटापा। ओबेसिटी मतलब हम लोग का शरीर फैल जाना, मोटा हो जाना। क्यों? क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज होगा नहीं, दिन भर हम लोग कंप्यूटर में बैठे रहेंगे, तो हेल्थ इश्यूज आएंगे, बीमार पड़ेंगे, है ना। मम्मी पापा परेशान होंगे। इसलिए बहुत ज्यादा भी इंटरनेट पे नहीं बैठना है। बैठना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ साथ एक्सरसाइज भी करना है। ठीक है, पढ़ने के लिए इंटरनेट को यूज करना है। बाकी अगर देखना है कि इंटरनेट से खुद का नुकसान हो रहा है तो नहीं करना है, देन वी डोंट हैव टू डू दैट। ओके, देन वायरस थ्रेट। इन द प्रीवियस चैप्टर only we have discussed about viruses. Okay, so there is a threat of virus. Virus आने का डर रहता है इंटरनेट से। Clear? So today we will discuss till this much. Okay, so what we have covered today, we have discussed advantages of what is internet, definition of internet, then advantages of internet, disadvantages of internet, and the most important thing, how to create Gmail account and how to use Google Drive in order to store our files online. Yes or no? So thank you so much for watching this video. Bye bye. Take care.